کے لیے دعا میں رہنمائی کریں۔ ہاللویا 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 پاپا 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 خدا باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں مسیح یسوع میں خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، آپ نے فضل بخشا، ممکن کی ہم اکٹھا ہو کے خدا تیری آواز کو سنیں۔ خدا یسوع آج کے کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا یسوع تیرا کلام جو میرے قدموں کے لیے چراغ ہے، میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا یسوع میں دل کی تھا گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ خدا یسوع آج کا کلام خدا یسوع میری زندگی کے لیے ہو، میرے گھرانے کے لیے ہو، میرے ملک کے لیے ہو، ملک کی امن اور سلامتی کے لیے ہو۔ خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تیرے خادم کے لیے خدا یسوع تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ تو بخیریت ہمارے درمیان ان کو لے کے آیا خدا یسوع، تمام رکاوٹوں بندھنوں کو توڑا۔ آج بھی خدا جو تجھ سے مانگا تو نے خادم کی صورت میں دیا ہے۔ خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ خدا یسوع اپنے خادم کا منہ بننا، خدا یسوع ترتیب کی الفاظوں کی ترتیب عطا کرنا۔ خدا یسوع ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے خدا یسوع کہ آپ نے فضل بخشا، پھر سے ممکن کیا کہ خدا یسوع ہم تیری حضوری میں جھکے، تیرے نام کو عزت و جلال دیں۔ آج کا کلام خدا یسوع ہماری زندگیوں کے لیے باعث وہ 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 کا 100 گنا پھل ہے۔ خدا میں یسوع ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، سننے والے خدا نے ایمان لائیں۔ خدا میں یسوع ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو نے خدا ہمیں اس لائق بنایا خدا کہ ہم ہمیشہ تیرے پیروکار رہے، تیرے سچے سپاہی بنے۔ خدا میں یسوع ہم تیری شکر گزاری کرتے، تو نے اچھا خادم عطا کیا، اپنے خادم کی اور حدوں کو بڑھا۔ خدا میں یسوع ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں مسیح کے نام سے، آمین۔ مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خدا میں سلامتی سے ہوں گے۔ اور میرا ایمان ہے کہ آج جتنے بھی لوگ خدا کا کلام آج سنیں گے، یہ کلام آپ کی زندگیوں میں جو ہے یہ بڑا اثر پیدا کرے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جن حالات میں سے گزر رہے ہیں، پوری دنیا جن حالات میں سے گزر رہی ہے، اور ہم گزرے 2-3 مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ساری چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اور ان حالات میں جہاں پر مالی نقصان ہوا اور جہاں پر قیمتی جانوں کا نقصان ہوا، وہاں پر بہت ساری ہماری زندگی کی، خاندان کی، خدمت کی، کلیسیا کی جو چیزیں بکھری تھی، خدا نے ان کو اکٹھا کرنے میں بھی ہماری مدد کی، ہماری رہنمائی کی، تاکہ ہم ان کو اکٹھا کر سکیں۔ بہت دفعہ ہم نے خدمت میں ہو کر ہم دعا سے اتنا دور چلے گئے، اور ہم خاندان میں اس طور سے وقت نہیں دے پا رہے تھے جس طور سے ہمیں دینا چاہیے تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ خدا نے بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کا بھی ہمیں موقع دیا۔ ایز اے پاسٹر ہوتے ہوئے میں اپنی بھی گواہی بتانا چاہتا ہوں کہ بہت دفعہ خدمت میں ہم اس طرح سے کھو جاتے ہیں، اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہم دعا کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتے، ہم گھر کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتے۔ لیکن ان حالات میں ہمیں یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کام نہیں رکا۔ اگر عبادت نہیں ہو رہی، وزٹ نہیں ہو رہی، اگر ہم ایک دوسرے سے مل نہیں رہے، تو اس سے خدا کو کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ اور جب تک ہم آزاد تھے، گھومتے تھے، چرچ میں جاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمارا رفاقت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، چرچ میں وزٹ کرنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم اپنے گھروں میں ہیں، تو میں نے ذاتی طور پر اس میں سیکھا ہے کہ میرا جو خاندانی دعائیہ مذبح ہے، اپنا شخصی دعائیہ مذبح جو ہے وہ بہت مضبوط ہو چکا ہے، اور پھر سے وہی تازگی اور خدا کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ بحال ہوا ہے۔ اور اس لیے جہاں پر بہت سارے نقصان ہوا، نقصانات ہوئے، وہاں پر بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہماری زندگی میں آئیں، اور اچھی چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں لینا بھی چاہیے۔ اور گھروں میں رہتے ہوئے شاید خدا کا یہ منصوبہ ہے
कि हम उस रिलेशन को, उस रिश्ते को फिर से बहाल करें जो खुदा के साथ हमारा टूट चुका था। और इसी तलक से हम बात करेंगे, गुजरे कुछ दिनों से खुदा ने ये फजल बख्शा कि इस कलाम के हिस्सा पर हम गौर कर सके। और आप जितने लाइव हमें सुन रहे हैं, आपके साथ भी मैं ये कलाम शेयर करना चाहता हूँ। आए मेरे साथ निकालें सलातीन की पहली किताब, उसका 18वां बाब और उसकी 30वीं आयत। सलातीन की किताब पहली, उसका 18वां बाब और उसकी 30वीं आयत। यहाँ पर खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है, मुकद्दस एलिया के तल्लक से यहाँ पर लिखा है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा कि मेरे नजदीक आ जाओ। चनाचे सब लोग उसके नजदीक आ गए। तब उसने खुदावन के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मरम्मत किया। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और समझाया जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। यहाँ पर खुदा के लोगों, हमने जो खुदा के जिंदा कलाम का हिस्सा लिया है, जब काल के बाद खुदा फिर से मुकद्दस एलिया के साथ कलाम करता है तो तू वापस जा और वापस जाकर उन चीज़ों को दुरुस्त कर जो बिखरी हैं और जिन चीज़ों की वजह से काल पड़ा है। खुदा ने अपना आसमान बंद कर दिया है। यहाँ पर मुकद्दस एलिया ने सबसे पहले जो काम किया, उसने लोगों को इकट्ठा किया और उसने लोगों से कहा कि तुम सब लोग मेरे नजदीक आ जाओ। और अगर हम मसीह की तालीम को देखें तो मसीह ने भी यही कहा कि जमा होने से बाज ना आओ। लेकिन हम देखते हैं कि आलमगीर कलीसिया टुकड़ों में बटी हुई है और हमारे अपने जगह का, मुल्क का, कलीसियों का यही हिसाब है कि लोग बिखरे हुए हैं। अगर कोई मेरे चर्च का है तो मैं उसे मना करूंगा, वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना। और तफिरके और जदाइयाँ और बिदात हैं और जिनकी वजह से क्या होता है, खुदा की हजूरी उठ जाती है, उसका मसा उठ जाता है और खुदा जो कुछ करना चाहता है खुदा वो नहीं कर पाता। और ये हमें वहां पर बात नजर आती है कि लोगों के अंदर यूनिटी खत्म हो चुकी थी और इसीलिए यीशु ने कहा कि जमा होने से बाज ना आओ। और हम देखते हैं कि ईद पेंतीकोस्त के दिन रसूलों के अमाल में जब 120 की जमात ने जमा होकर दुआ की तो रूह कुद्दस नाज़िल हुआ। गैर ज़बाने बोली लोगों ने और शागिर्दों ने, 120 की जमात ने, खुदा की कुदरत जाहिर हुई। और उसी रूह से भरकर जब मुकद्दस पतरस रसूल ने कलाम किया तो उसके एक कलाम के वसीला से 3000 लोगों ने अपनी जिंदगी यीशु को दी। और आज जब हम जमा नहीं होते, तो जमा जब हम नहीं होते तो उसका जो नुकसान है, वो पहला नुकसान क्या है कि खुदा का मज़बा टूट जाता है। उसके मज़बा में जो है वो दरारें पड़ जाती हैं और जहाँ पर बखूर जलाया जाता है, कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती हैं, हमारी दुआएं, मुनाजातें पेश की जाती हैं, उस मज़बा में दरारें पड़ जाती हैं। और जब जमा किया मुकद्दस एलिया ने तो उसने कहा, आगे लिखा है, तब उसने खुदावन के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मरम्मत किया। यानी 7 लोगों को लिया और उस मज़बा पर काम किया जो ढा दिया गया था, जिसको खत्म कर दिया गया था। और यीशु मसीह को जब पकड़ने के लिए तो वहां पर हम देखते हैं कि शागिर्द जो है वो बिखर गए और यीशु मसीह गतसमनी बाग में दुआ करता रहा, लेकिन शागिर्द क्या हुआ, बिखर गए। और यीशु मसीह ने कहा पतरस को कि जब तू वापस आएगा तो अपने भाइयों को मजबूत करना, उनको इकट्ठा करना। और फिर उन्होंने इकट्ठे होकर मज़बा तैयार किया। वो मज़बा जो गिर चुका था उसकी फिर से मरम्मत की। आज चर्चेज में, आज कलीसियों में, आज ईमानदारों में इसी वजह से निजात का काम नहीं हो रहा, इसी वजह से शिफा का, बहाली का काम नहीं हो रहा। पहले नंबर पर तो हम बिखरे हुए हैं और दूसरे नंबर पर हम मज़बा पर नहीं झुकते। मज़बा की मरम्मत करना, मेरा शख्सी मज़बा, मेरा खानदानी मज़बा और कलीसियाई मज़बा, ये मजबूत होना और इसकी मरम्मत होना ये बड़ी ज़रूरी है। और हमने चर्च में
बहुत सारे खिदमत गुजारों को तो जन्म दे दिया है, लेकिन हमने दुआ करने वाले लोगों को जन्म नहीं दिया। और जिन हालात में से हम गुजर रहे हैं, काश के चर्चेज में दुआ करने वाले लोग हों, आंसू बहाने वाले लोग हों। हम यीशु की मनादी करते हैं और हमें यीशु के किरदार को अपनाना चाहिए। यीशु मसीह जो है वो सलीब पर भी शिफायत कर रहा है कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि हम क्या करते हैं। ऐसा मर्दे दुआ और मर्दे ईमान जिसकी हम परस्तिश करते हैं, वो हमें ये नमूना देता है कि अगर हम दुख में हैं, सुख में हैं, तो हमें उसकी परस्तिश करनी चाहिए, उसकी शिफायत करनी चाहिए और मज़बा की मरम्मत करनी चाहिए। आज मुझे और आपको गौर करने की ज़रूरत है कि इन हालात में मैंने किस हद तक अपने दुआया मज़बा की मरम्मत की है, और इस पर ईमानदारों को ज़रूरत है कि वो गौर करें। ईमानदारों को चाहिए कि वो इन हालात के ऊपर गौर करें और अपने दुआया मज़हबों को मजबूत करें। और आगे खुदा का बंदा फरमाता है 19वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है उसने कहा, मुझे खुदावंद लश्करों के खुदा के लिए बड़ी गैरत आई। ये एक ऐसा नबी है जो खुदा की गैरत रखता है। इसने गलत बातों के साथ और गलत कामों के साथ इसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और मर्दे ईमान, मर्दे दुआ वो बंदा है जो गलत कामों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और ये कहता है मुझे गैरत आई है। और गैरत किस लिए आई है? क्योंकि बनी इसराइल ने तेरे अहद को तर्क किया है, यानी उस अहद को जो बनाया गया था खुदा के और इंसान के दरमियान बांधा गया था, उसको तर्क किया है। और आगे लिखा, तेरे मजहबों को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया, एक मैं ही बचा हूं, सो वो मेरी जान लेने के दर पे हैं। ईमानदार के अंदर खुदा के लिए एक बड़ी गैरत होनी चाहिए और कभी भी उसको गलत कामों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ईमानदारों में बताना चाहता हूँ, जब हम खिदमत में होते हैं हमारे लिए बहुत सारी ऑफर्स होती हैं, बहुत सारे पैकेज होते हैं जो हमें गलत साइड पर लेकर जा सकते हैं। लेकिन मुकद्दस एलिया ने इनमें से एक को भी कबूल नहीं किया, बल्कि अकेला वो शख्स जो है वो खड़ा हुआ है और वहां पर खुदा के मजहबों को डाकर बुतों के मजहबे कायम किए, लेकिन अकेला वो ही बचा। और इसलिए ईमानदारों के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो दुआया मजहबों को मजबूत करें। और बहुत दफ़ा हम नाम के ईमानदार रह जाते हैं, हमारे दुआया मजहबा जो हैं वो गिरे होते हैं। और इसी के साथ रिलेटेड एक हवाला है, उसको हम देखेंगे। गज़ल गज़लात की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत। बड़ी खूबसूरत बातें यहाँ पर लिखी हैं। गज़ल गज़लात पहला बाब और उसकी 6ठी आयत। यहाँ पर लिखा है, मुझे मत ताको कि मैं स्या फाम हूँ, क्योंकि मैं धूप की जली हूँ। मेरी माँ के बेटे मुझसे ना खुश थे, उन्होंने मुझसे पाकिस्तानों की निगहबानी कराई, लेकिन मैंने अपने पाकिस्तान की निगहबानी नहीं की। यहाँ पर ये कलाम हमें सिखाता है कि यहाँ पर जो औरत बात कर रही है वो कहती है, मुझे मत ताको कि मैं स्या फाम हूँ, यानी मेरा रंग जो है वो स्या है और क्योंकि मैं धूप की जली हूँ। वो कहती है मैं धूप के सबब से जल चुकी हूँ, मेरी माँ के बेटे मुझसे ना खुश हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद उसकी जो माँ के बेटे हैं उससे खुश नहीं। वजह क्या है? उन्होंने मुझसे पाकिस्तानों की निगहबानी कराई, लेकिन मैंने अपने पाकिस्तान की निगहबानी नहीं की। और आज भी बहुत सारे ईमानदार खादम, खिदमत गुजार जो दूसरों में मसीह की तालीम का प्रचार करते हैं, लेकिन जब उनकी अपनी जिंदगी को देखा जाए, उनके खानदान को देखा जाए, तो हमें बिल्कुल यही सूरत हाल नजर आती है कि दूसरों के पाकिस्तानों की निगहबानी की है, लेकिन अपने पाकिस्तान की निगहबानी नहीं की। इससे पहले कि हम अपनी खिदमत का हिसाब दें,
اس سے پہلے ہم اپنے گرانے کا حساب دیں گے۔ اور خدا کا بندہ پولس رسول تیموتھیوس کو کہتا ہے جو اپنے گھر کا بندوبست ہی نہیں کرنا جانتا وہ میری کلیسیا کی خبر گیری کیسے کرے گا۔ اور اس لیے ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو کہ ہم پاکستانوں کی یعنی کلیسیا کی نگہبانی کریں، دوسروں کی نگہبانی کریں، لیکن ہماری اپنی زندگی، ہمارا اپنا گھرانہ جو ہے وہ خراب ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، اور اس سے ہماری خدمت کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے خدا کے لوگوں ضروری ہے کہ ہم اپنے مذہبہ کی مرمت کریں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب تم جمع ہوتے ہو تو دعا کرو۔ دعا خدا سے باتیں کرنے کا نام ہے، خدا سے رفاقت کرنے کا نام ہے، اور دعا جو ہے یہ ایماندار کا ایک روحانی سانس ہے۔ جب ایماندار دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کا روحانی سانس رک جاتا ہے، وہ روحانی طور پر مر جاتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، خدا کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، وہ پہلے کی طرح خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس لیے ناکام ہیں کیونکہ وہ دعا کرنا چھوڑ چکے ہیں اور روحانی طور پر وہ مر چکے ہیں۔ اور اس لیے ضرورت ہے کہ ہم دعا کرنا شروع کریں تاکہ ہمارا روحانی سانس بحال ہو جائے اور ہم روحانی طور پر زندہ ہو جائیں۔ اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ باتیں خدا کا بندہ مقدس یعقوب جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور بڑی ایمان کو تقویت دینے والی باتیں ہیں۔ ہم سب ان باتوں سے واقف ہیں۔ 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے۔ یعنی جس طرح سے ہم مصیبت میں ہیں، پوری دنیا مصیبت میں ہے، اور خدا کا بندہ یعقوب کہتا ہے کہ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے۔ دعا ہم تب کر سکتے ہیں جب ہمارا مذہبہ ٹھیک ہے، جب ہم مذہبہ پہ ہم جاتے جھکتے، ہم گھٹنوں کے بل ہوتے ہیں، پھر ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا مذہبہ ٹھیک نہیں ہم دعا نہیں کر سکتے، ہم کبھی بھی مصیبت سے رہائی نہیں پا سکتے۔ اور ان حالات میں بھی ایمانداروں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا مذہبہ قائم کرتے، دعا میں وقت گزارتے، لیکن انہوں نے اس کو بھی انجوائے کیا ہے اور اس قیمتی وقت کو بھی انہوں نے ضائع کیا ہے۔ اور خدا کا بندہ کہتا ہے اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو ہم کے گیت گائیں۔ اگر خدا ہمیں کو خوشی دیتا ہے تو ہم کیا خدا کی حمد کرتے ہیں یا ہم اس میں بھی ابلیس کو خوش کرتے ہیں؟ اور آگے لکھا اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کرے۔ یہاں پر ہر کام، ہر بات دعا کے اوپر کی جائے گی۔ ہمیشہ دعا کرنے والا بندہ ہی دعا کرنے والوں کو عزت دیتا ہے، اور دعا کرنے والا ہی بندہ جو ہے وہ دعا کرنے والوں کو اپنے گھر میں اتارتا ہے۔ دعا کرنا جو ہے یہ مشکل ہے، لیکن ایماندار کی قیمت، طاقت اور قدر اسی میں ہے۔ بہت دفعہ ہم مشکلوں سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن مذہبہ پر جھکنا نہیں چاہتے، لیکن جب تک ہم مذہبہ پر جھکتے نہیں ہم کبھی بھی مشکلوں سے رہائی نہیں پا سکتے۔ اور آگے لکھا جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خدا اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی ایمان کے ساتھ۔ بہت دفعہ ہماری دعائیں ضرورت کے مطابق ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ایمان کے ساتھ جو دعا کی جائے گی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا، اس کے گناہ بھی بخشے جائیں گے، معاف کیے جائیں گے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ ہٹ گیا تو میرا دل اس سے خوش نہیں ہوگا۔ لیکن ہم ہٹنے والے نہیں بلکہ ہمیں ایمان پر کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، اور ہم مرد دعا تب بھی بن سکتے ہیں جب ہم مرد ایمان بنیں گے، اور جب تک ہم مرد ایمان نہیں ہم مرد دعا نہیں، اور جب تک ہم مرد دعا نہیں ہم مرد ایمان نہیں بن سکتے۔ اور خدا کے لوگوں دعا کرنے والا بندہ جو ہے وہ طوفانوں کہ رخ بدل دیتا ہے، اور دعا کرنے والا شخص جو ہے وہ خدا کے بند آسمان کو کھول دیتا ہے۔
दुआ में इतनी कुव्वत है। हम नैनवा के दौर में देखते हैं कि उन लोगों ने रोजा रखा, दुआ की और खुदा ने अपना इरादा बदल लिया। और हालांकि हम बाइबल पढ़ते हैं कि खुदा जो कह देता है कभी उससे पीछे नहीं हटता, लेकिन दुआ करने वाला शख्स जो है वो खुदा के इरादा को बदल देता है। और आगे लिखा है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा हो। यहाँ पर हमें एक बड़ी वजह जो नजर आती है, जो हमें मजबा की मरम्मत नहीं करने देती, वो गुनाह है। और यहाँ पर लिखा है दुआ करो और गुनाहों का इकरार करो ताकि तुम दुआ करो और शिफा हो। जब हम अपनी जिंदगी से गुनाह को निकाल देते हैं, हमारी दुआया जिंदगी बहाल हो जाती है, हमारा दुआया मजबा बहाल हो जाता है और हमारा खुदा के साथ राब्ता बहाल हो जाता है। और आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, आगे लिखा है, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि लिखा है बहुत कुछ हो सकता है। और हम ज़बूर 2 में पढ़ते हैं, वहां पर ज़बूर 2 का जो मुसन्नफ है, ज़बूर नवीस है, वो कहता है, खुदा फरमाता है, मुझसे कोमे मांग, मैं कोमे तेरी मिरास के लिए कर दूंगा, जमीन का इंतहाई हिस्सा तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्श दूंगा, लेकिन तुम मुझसे मांग। खुदा ने कहा यशुआ से, जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन शर्त ये रखी कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तो इससे ना दाएं मुड़ और ना बाएं मुड़ और तू खूब कामयाब होगा। और जब हम शरीयत को सामने रख कर हम खुदा का काम करते, मजबा को बहाल करते, दुआ करते, हम कामयाब होते हैं। और आगे खुदा का बंदा मुकद्दस एलिया को कोट करता है, यहाँ पर लिखा है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मींह ना बरसे, चनाचे 3.5 बरस तक मींह ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। यहाँ पर देखें कि दुआ करने वाले बंदे की ताकत, एक मर्द ईमान, मर्द दुआ, उसने जोश से दुआ की कि मींह ना बरसे। और यहाँ पर लिखा है कि मींह 3.5 बरस तक मींह ना बरसा। फिर उसने दुआ की, खुदा का आसमान खुला और मींह बरसा और पैदावार हुई। आज भी जब ईमानदार तफरीकों से निकलकर, बिदात से निकलकर, मखालफत से निकलकर जब घुटनों के बल हो जाएंगे तो खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करेगा। यहाँ पर जिस्मानी पैदावार हुई और आज के दौर में रूहानी पैदावार होगी। बहुत सारे रूहानी बच्चे जन्म लेंगे और खुदा ताजगी को नाज़िल करेगा। जहाँ पर भी दुआ की गई, खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर किया, अपने आसमान को खोला और खुदा का जलाल जाहिर हुआ। मैं आपको गर्ज करना चाहता हूँ कि खुदा के लोगों अपना शख्सी दुआया मजबा कायम करें, उसकी मरम्मत करें। अगर वो टूट चुका है, गिर चुका है, अपना खानदानी और अपना कलीसिया दुआया मजबा कायम करें ताकि खुदा की कुदरत जाहिर हो। आए खुदा के हजूर में हम अपने सर झुकाएं, हम आपके लिए दुआ करेंगे ताकि ये कलाम आपकी जिंदगी में जो है वो फल पैदा करे, असर करे, ताकि आपके टूटे हुए मजबा जो है वो मजबे मरम्मत हो जाए और आप अपने होठों का फल, अपनी दुआएं, अपनी प्रस्त जो है वो खुदा के हजूर पेश करना शुरू करें। खुदाए कादर मुतलक बाप, यस्सु नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू शुक्रगुजारी के लायक है। ऐ बाप, यस्सु नाम से मैं दुआ करता, जितने लोगों ने तेरा कलाम सुना, ऐ बाप तेरा हाथ बढ़े, इन्हें इस कलाम पर अमल करने का फजल बख्श दे। ऐ मेरे खुदा, सारी रुकावटें जाती रहें। ऐ खुदा, इनके खानदानी दुआया मजहबों की मरम्मत हो जाए, इनके शख्सी दुआया मजहबों की मरम्मत हो जाए। कलीसिया में मर्द ईमान, मर्द दुआ जन्म लें ताकि फिर से पूरी दुनिया बहाल हो, हमारा मुल्क बहाल हो, हमारा इलाका बहाल हो। और आज मैं दुआ करता मेरे खुदा यस्सु नाम से चर्चेज में दुआ करने वाले लोग जन्म लें, जो घुटनों के बल होकर मेरे खुदा शफायत करें और तेरे हजूर में
दस्ते दुआ बुलंद करे। वो अपनी इसी कुव्वतें जो लोगों को दुआ करने से रोकती, उन कुव्वतों को बांधता और इनकी जिंदगियों में ईमान की कुव्वत को डिलीवर करता, और यीशु नाम से ईमान से खड़े हो जाएं और तेरे जलाल को जाहिर करें। तेरे जलाली और बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। God bless you.